नाज़रीन, पहली ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। सीधी पहली टेलीफोन कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो। Hello, hi. My name is Ash. I'm calling from Cardiff, हाँ and I've just got a few questions. Please note it down. We applied on the basis of the 7 years kids rule, राइट and we've been granted limited leave to remain, not discriminatory, limited, for 2.5 years, या and it's coming to expire on January. So I was just wondering how long will it take, and what application do we meant to fill out and send it? And I got another question as well. I mean, we've been living here for past 12 years. या And been studying in Wales as well. We've Uh-huh. done primary school, high school, and I'm in uni now. I mean, it's kind of weird that they granted me student finance, Welsh government, and Okay. I was wondering, will that affect my limited leave to remain extension, or is there a positive sign? So if you could just answer those questions for me, please, be very Okay. kind. Are you expected to do the application yourself, or are you going to get a solicitor to do it? No, we'll get solicitor to do it, Okay. but we as a family we are so. Yeah, I wouldn't suggest that you do it yourself. Okay, don't risk it. Okay. Now, firstly, Please, can you? What do you yeah, think? I'll explain both the questions, both the answers to you. Now, firstly, you've said that you've got the 30 months leave already, which is coming to an end in January 2017, and you want to know how long it's going to take when you apply for an extension. When you apply for an extension, typically speaking, we're looking at about 3 months' time to get an extension. It could be more, it could be a little bit less. Usually, it's more, but not less. But I wouldn't really worry about it, because once you put the application in, Section 3C kicks in, and your leave to remain continues on the same conditions that it was before you made the application, even though your visa has expired or even though your leave to remain has expired. It's continued by operation of law under Section 3C. So that's one thing. Secondly, what application is going to be? It's going to be an FLR application. So you can do an FLRO or you can do an FLRFP. Both can be workable with this. The third thing you've asked for is the student finance, which is very interesting, because usually you don't get student finance if you have only limited leave. Now, you have been granted student finance. When you fill up the application form, it asks you about any benefits that you have claimed. Now, student finance, I don't think is listed in one of those benefits. So I don't think that affects you in any way. So you fill up the application form as accurately as you can. There is nothing further to say on that. Now, when you say whether it's a positive sign that they gave you student finance, there is no positivity in it. It's got nothing to do with the Home Office. The simple thing is, the student finance is issued by either your local authority or your university is going to help you arrange that, or whatever happens. Now, it's got nothing to do with the Home Office. The only thing that they're interested in is they want to see whether you have indefinite leave or not. Now, in my experience, unless you have indefinite leave to remain, you do not get student finance, but you've got it. So, you know, you might have got a lucky break in this. So enjoy it, study well, make sure that you complete whatever you're doing, because this is a very tough route to take to be able to get to your educational goals. And if you're doing that, well, bravo to you. All right, best of luck with that. थोड़ी सी उर्दू में जल्दी से एक्सप्लेन कर दूँ। इन्होंने पूछा ये कि इनको 7 साल के बच्चों वाले केस के ऊपर इनको यहाँ पे लीव टू रिमेन ग्रांट हुई थी, जो 30 मंथ्स की मिलती है, यानी 2.5 साल की जो लीव मिलती है, वो ख़त्म हो रही है जनवरी में। पूछ रहे थे कौन सी एप्लीकेशन करनी है, कितना टाइम लगेगा। मैंने बताया तकरीबन 3 से 4 महीने लगते हैं एप्लीकेशन होने में, डिसाइड होने में, और जो एप्लीकेशन फॉर्म इस्तेमाल करना है वो FLRFP और FLRO भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट फाइनेंस के बारे में उन्होंने पूछा कि इनके पास क्योंकि लिमिटेड लीव है लेकिन फिर भी इनको स्टूडेंट फाइनेंस ग्रांट कर दिया गया है, क्या ये कोई अच्छा शगुन है कि इनकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी जा रही है, या इसकी वजह से इनको कोई नुकसान हो सकता है? तो उसका जवाब ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो बेनिफिट्स की लिस्ट है उसके अंदर कहीं पे ये स्टूडेंट फाइनेंस का जिक्र नहीं आता। सो अगर वो जिक्र नहीं है तो आपको वो बात कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ पे आपका जो ये बात है कि अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, उसका किसी चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपको स्टूडेंट फाइनेंस मिल गया, आपका वो स्टूडेंट फाइनेंस चल रहा है, एंड दैट्स इट। और इसके अलावा कोई इसमें बात करने वाली नहीं। ऑलराइट जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बुखारी में मुझे आपसे ये पूछना था कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट था और रिफ्यूज हो गया था मेरा वीज़ा और मैं अपील पे था। तो इसके दरमियान मेरे वाला साहब इटली से यहाँ पे आगे, उनको इटालियन नेशनलिटी मिल गई। अच्छा। तो वो यहाँ पे आगे तो उनकी बिहाफ के ऊपर मैंने अप्लाई किया रेजिडेंस कार्ड जी।
तो वो रिफ्यूज हो गया क्योंकि मेरे वाले साहब की वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उनके वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। जी। मगर हमने नेक्स्ट अप्लाई किया तो मुझे वो ग्रांट हो गया वीज़ा। ठीक है। पर क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं जब पहली दफ़ा मैंने अप्लाई किया रेजिडेंस कार्ड, उसका रिफ्यूज़ल आया 9 तारीख को। ओके। 9 तारीख को उन्होंने रिफ्यूज़ किया, मुझे मिला 20 तारीख को, ठीक। यानी 11 दिन के बाद जी। मेरे वकील को। ओके। तो मैंने उसके बाद जो अप्लाई किया वो अगर मैं 9 तारीख को फॉलो करूं तो मैंने 32 डेज के बाद अप्लाई किया। ओके। अगर जब मुझे मिला 20 तारीख को, उस वक्त से अकाउंट करो 21 डेज बनते हैं। ठीक है। तो अब इस दरमियान में क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरे 10 ईयर मुकम्मल हो गए हैं, तो मैं नेक्स्ट ईयर 10 ईयर मुकम्मल हो जाएंगे, तो मैं उस बेस पे वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। जी। तो ये क्या मेरे लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर जिस दिन उन्होंने रिफ्यूज किया है, अगर वो दिन अकाउंट करूँ 32 से हैं, 28 डेज के अबव हो गए हैं, मगर जिस दिन मेरे वकील को मिला उसने स्टैम्प किया उस रिफ्यूजल लेटर के ऊपर, वो हमें 11 दिन के बाद मिला और उसने स्टैम्प किया, वो दिन अकाउंट करें 21 डेज बनते हैं। तो प्लीज मुझे बताएं कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन अब क्या है। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या है जी? मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप आराम से बस सुपर वाले का नाम लें और अप्लाई कीजिए अपना 10 साल की बेस पे जब आपका टाइम कंप्लीट होता है। इसकी एक वजह जो मैं समझता हूँ टेक्निकली शायद आपको फ़ायदा दे जाए, वो ये है कि आपका जो रिफ्यूज़ल है, चाहे वो 9 तारीख को मिला आपको, चाहे वो आपको 20 तारीख को मिला, अगर आप अपने वालिद साहब के साथ रह रहे थे, वो ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे थे और उनके उस ट्रीटी राइट्स के एक्सरसाइज करने के दौरान आप उनके साथ उनकी छत के नीचे रह रहे हैं, सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हैं, तो जब आप अप्लाई करते हैं फॉर रेजिडेंस परमिट, आप उस वक्त वो रेजिडेंस परमिट के लिए वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, आप एक कॉन्फर्मेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो मेरी सोच ये कहती है कि आपका सब स्टेटस तो चलता आ रहा है, आपने पहली एप्लीकेशन डाली, वो आपकी लीगल अगर टाइम के अंदर आपने डाल दी, वो आपकी रिफ्यूज़ की गई, उसके 28 दिन के अंदर अंदर आपने दूसरी एप्लीकेशन डाल दी, तो एक सेंस बनती है। आप क्योंकि यूरोपियन रेगुलेशंस के अंदर हैं, यूरोपियन रेगुलेशंस के अंदर आपको वो सारा टाइम काउंट करवाना है। सो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपका अभी तो 5 साल का आपका लगा होगा, आपका वो चल ही रहा है, इसमें सिर्फ दी ओनली थिंग यू हैव टू लूज़, जो चीज़ आप लूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे हैं और कुछ भी नहीं। सो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन दीजिए कि जी आपने अपनी कॉन्फर्मेशन के लिए अप्लाई किया था, वीज़े के लिए अप्लाई नहीं किया था। सो इसलिए वो सारा टाइम जो आप वालिद साहब के साथ रह रहे थे, जिसमें आप सारी कंडीशंस को पूरा कर रहे थे, वो टाइम भी जो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने का टाइम था, वो भी सारा इसमें काउंट हो सकता है। अगर आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि उस सारे टाइम के दौरान आप अपने ट्रीटी, आपके वालिद साहब अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे थे और आप उनके डिपेंडेंट के तौर पर साथ रह रहे थे। सो भाई आई एम सॉरी, मैं तो ज़रा वो जैसे कहते हैं ना, वो यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, मैं ज़रा उस तरह सोचता हूँ, तो मुझे इस चीज़ से परवाह नहीं है कि जी वो 9 तारीख को हुआ कि 20 तारीख को हुआ। मुझे ये है कि आप यूरोपियन रेगुलेशंस में हैं, वहाँ पे आपकी कॉन्फर्मेशन ऑफ राइट के लिए आपने अप्लाई किया है, राइट तो आपको ऑलरेडी चल रहा है, अगर आप उसको प्रूव कर सकते हैं। सो जब आप तब तक 10 साल को प्रूव करना है, जब तक तो आपकी वैलिड लीव टू रिमेन चलती आ रही है, आप वो चीज़ प्रूव करते हैं, यानी वो अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद जहाँ पे वो ख़त्म होता है और आप दूसरी एप्लीकेशन करते हैं, ये क्या क्या कि जी मेरे वालिद साहब ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं और मैं अब उनके साथ रह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि इस टाइम से मैं उनका डिपेंडेंट था और मैं रेगुलेशंस में आता हूँ। तो वहाँ से आपका टाइम सारा लीगल काउंट होना चाहिए। और अगर किसी वजह से वो उसको लीगल काउंट नहीं करते या कहते हैं कि नहीं जी हम इसको मानने को तैयार नहीं है, तो आपको अपील का राइट मिलेगा, जिसमें आप कोर्ट में जाके जज के सामने इस चीज़ को फाइट कर सकते हैं। सो मेरे लिए तो इट्स अ नो ब्रेनर। मेरा ख्याल है आपको एप्लीकेशन ज़रूर करनी चाहिए 10 साल की बेस पे, आप उसके अंदर आर्ग्यू करें केस को अपने, और उसके बाद देखें आगे जाके क्या बनता है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बखैर साहब। जी वालेकुम सलाम। बखैर साहब, मैं चाहत बात कर रहा हूँ जी। हमने एक रिफ्यूजी स्टेटस पे फैमिली के साथ इंडेफिनेट अप्लाई किया था आज से 15 महीने पहले। 15 महीने पहले, ओके। तो साल पहले तकरीबन यानी 12 माह पहले हमने एमपी से लेटर लिखवाया था, तो लेटर का जवाब आया था कि जी आपकी सिक्योरिटी चेक्स हो रही हैं, ओके, तो आप अभी वेट करें। तो अभी टोटल 15 माह हो गए हैं, तो हमें कोई जवाब नहीं आ रहा जी। तो आप प्लीज़ बताएं कि इतनी देर क्यों लगी है और हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा, और दोबारा फिर एमपी के पास जाएं या हम क्या करें? मैं तो आपको यही कहूँगा कि फ़ौरन एमपी के पास जाइए दोबारा और जाके कुछ रीजंस दीजिए कि आप ट्रैवल करना चाहते हैं या आप अपनी लाइफ में आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं। ये एक चीज़ को लेके 15 महीने से आप इंतज़ार कर रहे हैं तो वो गलत है। दूसरी चीज़ कि वो किस वजह से इतना टाइम लगा रहे हैं। जो सिक्योरिटी चेक्स की बात होती है, मैं एप्लीकेशंस करता हूँ जी, हमारी एप्लीकेशंस में कभी भी 15 महीने नहीं लगते।
लगता है या तो ये कि आपके किसी बहुत चाहने वाले ने बहुत प्यार मोहब्बत भरी कोई बातें कही हैं होम ऑफिस को आपकी तरफ से, जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक ये बात हो सकती है। आजकल इस तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने कि जहाँ पे वो आपको पुरानी चीज़ें निकाल के कहते हैं कि जी आज से 8 साल पहले आपने झूठ बोला था, हम उसके सज़ा देना चाहते हैं आपको। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता इसमें, लेकिन बेहतर है कि आपको इसका पता हो ताकि आप उसके मुताबिक मेंटली तैयार भी हों और आप उसके मुताबिक कुछ काम भी कर रहे हो आगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपने एमपी के पास जाइए, एमपी को जाके यही कहिए कि जी मुझे एक टाइम फ्रेम चाहिए, मैंने आगे से कितनी देर इसका इंतज़ार करना है, मुझे कुछ तो बताया जाए, बिकॉज दिस इज़ अनरीजनेबल डिले। और अगर वो फिर भी एमपी को ये लिखते हैं कि नहीं जी बस हम सिक्योरिटी चेक्स कर रहे हैं, तो फिर मेरे भाई आप उनको जुडिशियल रिव्यू की भी धमकी लगा सकते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो एक नाइंसाफ़ी है और इतना टाइम उसमें कभी भी लगना नहीं चाहिए। सो अगर आप वो धमकी लगाते हैं, अक्सर मैंने देखा कि जब मैं उनको एक तड़ी लगाता हूँ तो आगे से अक्सर आपका फ़ैसला काफ़ी जल्दी आ जाता है। सो मे बी ऐसा ही हुआ आपके केस में। बेस्ट ऑफ लक विदार जी। अगला सवाल है। हेलो जी वकील साहब, आवाज़ आ रही है? जी जी बताइए। वकील साहब, तकरीबन 7 साल पहले एक एप्लीकेशन पाकिस्तान से हमारे खिलाफ आई थी, तो पुलिस ने हमें इन्वेस्टिगेट किया था कि आप बताएं कि ये कुछ, तो हमने उनके जो जो कुछ पूछा बताया था। तो उन्होंने कहा जी कि आपको कोई परेशानी में डालना चाहता है, हमें एप्लीकेशन वगैरह आपकी आई थी, लेकिन हमने कुछ आप में फाउंड नहीं किया जी। तो उसके बाद वो चले गए थे। ये 6 साल पहले हमने इंडेफिनिट अप्लाई करने से पहले की बात है। बस मैंने आपको इसीलिए बताया ना कि कोई हो सकता है कोई बहुत मोहब्बत भरी कोई चीज़ ऐसी चली है आपके लिए कि जिसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हो सकता है वही पुरानी चीज़ ही हो जिसका वो दोबारा इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। यहाँ पे ऐसा भी कर सकता है होम ऑफिस। सो अभी आपको इंतज़ार ही करना है, लेकिन उस इंतज़ार को खामोशी से बैठ के मत कीजिए। पहले जाइए एमपी के पास, वहाँ जाके शोर मचाएं। एमपी को कोई ना कोई जवाब आएगा। अगर एमपी को जवाब यही आता है कि जी हम कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते, हम सिर्फ अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कह सकते, तो फिर आप उनको एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर कर सकते हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू की धमकी होती है। वो लगा के देखिए उसमें क्या बनता है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो Hello? Yes, please switch off your television so you can actually speak to me. What can I do for you? Yeah. ये कॉल बंद कर दीजिए, hello. अगली कॉल दे दें मुझे प्लीज। हेलो 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 जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी। जी बताइए भाई, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी एकदम का लाइन में जी, मैंने ये पूछने थे कुछ एक दो सवाल कि अगर 10 इयर्स की बेसिस पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या विंडो पे जा सकते हैं? जी और जा सकते हैं। दूसरा सवाल ये था कि अगर इंडेफिनिट मिलने के बाद मुझे क्या 1 साल वेट करना पड़ेगा पासपोर्ट के लिए, नेशनैलिटी के लिए, या 10 साल वाले जो हैं वो स्ट्रेट अवे इंडेफिनिट के मिलने के फौरन बाद ही अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए? और एक और सवाल छोटा सा है, वो किसी और का है, वो मेरा नहीं है। उन्होंने ये पूछा है कि स्टूडेंट जो हैं वो अगर यहाँ 1 साल के कोर्स के लिए आए तो क्या आपने वो चिल्ड्रन को और वाइफ को बुला सकते हैं अगर वो स्टडी कर रहे हैं यहाँ? ओके जी ठीक है, थैंक यू जी, ठीक है जी। अब आप सुनिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पहला सवाल आपका कि 10 इयर्स की बेस पे क्या आप सेम डे विंडो सर्विस पे जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं जी। आपको पहले से अपॉइंटमेंट बनानी होती है, उनकी प्रीमियम सर्विस की फ़ी पे करनी होती है। मेरे एक्सपीरियंस में जो मेरे क्लाइंट्स जा रहे हैं, अक्सर ऐसा हो रहा है कि उनको वो सेम डे पे करने के बजाय 10 to 12 वर्किंग डेज या 12 to 14 वर्किंग डेज का कुछ टाइम दे देते हैं और उसके बाद जाके काम होता है। सो सेम डे पे एग्जैक्टली वो जो चीज़ थी वो अब हर केस के अंदर नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को वो ये कहते हैं कि जी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। सो वो सेम डे का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात आपने पूछी कि जी जब आपको इंडेफिनेटली मिल जाती है तो क्या आपको 1 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत है? जब आपने 10 साल की बेस पे अप्लाई किया है, उसका जवाब ये है कि आपको फिर भी इंतज़ार करने की ज़रूरत है,
इंडेफिनेटली मिलने के बाद आपको 1 साल वेट करना है, फिर आपने पूरे 5 साल के रेजिडेंस के प्रूफ्स लगा के उसकी बेस पे फिर आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा सवाल आपने पूछा कि जी कोई स्टूडेंट है वो 1 साल के लिए यहाँ पे आना चाहता है तो क्या वो डिपेंडेंट्स को लेकर आ सकते हैं साथ। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने स्टूडेंट केसेस को बहुत अरसे से डील नहीं किया बिकॉज इतना गंद पड़ चुका था कि मैं बिल्कुल उनको डील नहीं करता। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है स्टूडेंट्स डिपेंडेंट्स को नहीं लेकर आ सकते, उनको सबको बंद कर दिया गया है अनलेस आप कोई स्पेसिफिक कॉलेजेस या कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ है जहाँ पे उनको ख़ास तौर पे अलाउ किया जाता है कि वो कुछ स्टेट फंडेड हैं या कुछ इस तरह की कोई इस किस्म की चीज़ है कि जिसकी वजह से वो आपको किसी जगह पे सिर्फ अलाउ करते हैं। बाकी जनरली जहाँ तक मुझे पता है वो यही कि स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करते कि वो अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेकर आएँ। ऑलराइट सर, अब हम दूसरी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपना सिलसिला जारी रखेंगे सवाल जवाब का।